Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is NBFC illustrations, which is given in CMA final paper number 17, study note number 5. So in this video we will solve illustration number 4. Samdevan Limited is non-banking finance company, that is NBFC. It accepts the public deposit and also deals in the hire purchase business. So they are also doing a hire purchase business. We all are know that what is a hire purchase business, because we had a topic in inter, that is hire purchase system. Okay, हायर परचेज सिस्टम का हम लोग को इंटर में टॉपिक था, तो इसकी वजह से हायर परचेज क्या होता है वो हम लोग को सबको पता है. फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जिसको नहीं पता उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ओके, it provides you that the following information regarding the major hire purchase deals on 31st March 2014. So 31st March 2014 पे एक major hire purchase deal हुआ है. Few machines were sold on hire purchase basis on this date. The HP price यानी कि hire purchase price was set as 100 lakhs. Okay, as against the cash price 80 lakhs. Okay, hire purchase price was 100 lakhs and cash price was 80 lakhs. It means 100 minus 80, 20 lakhs का इंटरेस्ट है. हायर परचेज प्राइस में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है. सो हायर परचेज प्राइस इज 100 एंड कैश प्राइस इज 80, यानी कि जो भी मशीन्स है उनका जो वैल्यू है ओवरऑल 80 है. ओके, हायर परचेज 100 है और मशीन्स का वैल्यू 80 है. इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस इज इंटरेस्ट. ओके, डिफरेंस बिटवीन 100 एंड 80 इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट. नाउ नेक्स्ट, द अमाउंट वॉज पेएबल एज ₹20. It is 80 in the book, but it is wrong. You have to rectify this. You have to write here 20. The amount was payable as ₹20 lakhs down payment. Okay, तो डाउन पेमेंट हम लोग का रहेगा 20 lakhs का एंड द बैलेंस इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. मतलब जो भी इनिशियली पेमेंट किया जाता है उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं हम लोग, और बाकी का जो भी बैलेंस बचेगा वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा. When hire purchase transaction taken place, at that time 20 lakhs payment was made. It is called as down payment and balance amount will be paid in 5 equal installments. That system is called as hire purchase system. The hire vendor collected the first installment as on 31st March 2015, but could not collect the second installment, which was due on 31st March 2016. It means first installment was collected properly, but in case of second installment, hire vendor was not able to collect the installment. Okay, the company was finalizing the accounts for the year ended 31st March 2016 till 15th May 2016. इसका मतलब जो भी अकाउंटिंग पीरियड है वो दिया हुआ है. The date on which the board of directors signed the accounts, it's not relevant for us. The second installment was not collected. Presume the IRR. IRR means internal rate of return to be 10.42%. In short, it is a rate of interest. Okay, so this is the situation. Means इधर क्या हुआ है, हायर परचेज का ट्रांजेक्शन है, दैट इज हायर परचेज प्राइस इज 100 lakhs and cash price is 80 lakhs. Difference between that is interest, that is 20 lakhs. At the time of transaction, down payment was made of ₹20 lakhs and the balance amount, see, hire purchase price was 100 lakhs. We will deduct this 20 lakhs, that is down payment, from hire purchase price. So we will get 80 as the balance. Okay, that 80 lakhs will be paid in 5 equal installment. First installment was paid, means recovered by this hire vendor, means NBFC. Samdevan Limited NBFC has collected the first installment in a proper way, but in case of second installment there was a issue. They were not able to collect that second installment. So we have to do calculation for that, and interest rate is 10.42% required. A, that is what should be the principal outstanding on 1/4/2015. Okay, so principal outstanding we have to find out at a 1/4/2015, यानी कि ट्रांजैक्शन के टाइम पे 31 मार्च 2014 को ट्रांजैक्शन हुआ, तो नेक्स्ट डे एक न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, दैट इज 2015 to 16. ऑन दैट डेट व्हाट इज द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग वी हैव टू शो. नेक्स्ट,
should the company recognize the financial charge for the year 2015 and 16 as a income? Second, what should be the net book value of asset as on 31st March 2016 so far the Samdevan Limited is concerned as per the NBFC prudential norms requirement for provisioning. Okay, what should be the amount of provision made as per the prudential norms of NBFC laid down by RBI? Okay, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन वो है नहीं। जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तब आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, सी व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। ओके, ये जो टोटल 100 लाख है उसमें से प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना इंटरेस्ट है, वही हम लोग को शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वही करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द आंसर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस परसेंटेज ऑफ प्रोविजन। ओके, प्रोविजन परसेंटेज फॉर द हायर परचेज सिस्टम ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी के लिए जो भी हायर परचेज जब वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो कितना प्रोविजन का मतलब कितना प्रोविजन करना चाहिए, इसका परसेंटेज है। सी, इफ इंस्टॉलमेंट इज आउटस्टैंडिंग अप टू 12 मंथ्स देन नो प्रोविजन। मतलब एक इंस्टॉलमेंट अगर 12 मंथ्स तक पे नहीं किया है तो वो केस में प्रोविजन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अप टू फ्रॉम इफ़ इट इज़ मीन्स पीरियड इज़ मोर दैन 12 मंथ्स एंड इट इज़ अप टू 24, मतलब 12 मंथ से लेके 24 मंथ तक, यानी कि 12 मंथ यानी कि 1 ईयर तक हम लोग को कुछ भी प्रोविज़न नहीं करना है। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम लोग को अगर आउटस्टैंडिंग फिर भी दिख रहा है तो वो केस में 10% ऑफ अ नेट बुक वैल्यू। ओके, इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर दैट इज़ फॉर 12 मंथ्स देर इज़ नो प्रोविजन। फ्रॉम टू नेक्स्ट ईयर दैट इज़ इफ पीरियड इज़ more than 12 months but up to 24 months then percentage is 10% of net book value. Next, if it is if that period, that outstanding period is more than 24 months and it is up to 36 months then 40% of net book value. If that period is more than 36 months and up to 48 months then provision will be 70% of net book value. And last one, that is if the period of outstanding installments, if period is up to 48 months, means it is more than 48 months, more than 48 months 100% of net book value, ऐसा प्रोविज़न किया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन में हम लोग को इतना सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में समझेगा कि क्या करना है। सी, ये क्वेश्चन में जो इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग है दैट इज़ फ्रॉम 2015 टू 16 का इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अप टू 12 मंथ्स। सो अप टू 12 मंथ्स देर विल बी नो प्रोविजन, बट वी हैव टू शो ऑल द कैलकुलेशंस इन द आंसर। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हायर परचेज प्राइस। ओके, इधर 48 मंथ्स चाहिए। ओके, हाँ, हायर परचेज प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सी, हायर परचेज प्राइस इज 100 lakhs। हायर परचेज प्राइस इज 100 lakhs। ओके, हायर परचेज प्राइस में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हायर परचेज प्राइस टोटल 100 lakhs का है। अभी हम लोग को चाहिए डाउन पेमेंट। ओके, सी, हायर परचेज प्राइस इज 80 lakhs, डाउन पेमेंट इज गिवन 20 lakhs। सी, डाउन पेमेंट पेएबल एज 20 lakhs एज अ डाउन पेमेंट। सो डाउन पेमेंट इज 20 lakhs, we have to minus this 20 lakhs down payment, so we'll get the balance payable will be 80 lakhs. okay, जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो 100 lakhs का है, लेकिन डाउन पेमेंट मतलब कुछ भी चीज़ अगर हम लोग खरीदते हैं तो वो टाइम पे हम लोग को कुछ तो पेमेंट करना पड़ता है एज अ डाउन पेमेंट। सो डाउन पेमेंट इज़ 20 lakhs एंड बैलेंस इज 80 lakhs. ओके, नेक्स्ट, computation of installment amount, we have to find out the installment amount. now balance payable हम लोग का है 80 lakhs. ओके, जो भी बैलेंस है वो हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, मतलब एनबीएफसी को इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा वो। सो 80 lakhs इज द बैलेंस पेएबल डिवाइडेड बाय पेएबल बाय जो भी जिसने परचेस किया है वो। ओके, सो 80 lakhs इज द बैलेंस एंड 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बोला है, बैलेंस इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सो दिस इज द बैलेंस विच विल बी पेएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट. Okay, simply we have to divide this
80 divided by 5, so 16 rupees 16 lakhs will be the installment amount. Rupees 16 lakhs will be the installment amount. Now cash price is given in the question. Okay, we have to check this. See, cash price is 80 lakhs. Cash price हम लोग को दिया है 80 lakhs. We have to find out the interest, total interest. Hire purchase price is given in the question, which is 100 lakhs. We'll check again. Okay, see, hire purchase price is given 100 lakhs and cash price is 80 lakhs. Hire purchase price 100 lakhs minus cash price is 80 lakhs. So interest amount will be, see, everything is rupees. Interest amount will be 20 lakhs. Okay, don't confuse with this down payment 20 lakhs and this interest 20 lakhs. Both are different. Okay, after that this balance is different and this cash price is different. Okay, ये जो balance है उसके हम लोग ने इंस्टॉलमेंट बनाया, लेकिन कैश प्राइस यानी कि वो जो भी मशीन से उसका जो कैश प्राइस है वो, डोंट कंफ्यूज विद द amounts because amounts are same. Okay, please understand the concept, so it will be helpful to you because in the exam if such type of question will come, then you have to solve it by your knowledge. So that's why you have to understand the concept. Okay, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो. सो इधर हम लोग का इंटरेस्ट का फाइनल अमाउंट हम लोग को मिल गया, दैट इज़ 20 lakhs. नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर सच काइंड ऑफ टेबल so that we'll be able to understand from the 16 lakh installment amount up to which extent there is a principal amount and up to which extent there is a interest element. Okay, and we'll get the outstanding principal amount. हम लोग को 16 लाख का इंस्टॉलमेंट पे करना है वो तो पता है, लेकिन उसमें से प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, वो समझने के लिए हम लोग को ये टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा और ये टेबल से हम लोग को आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा. So years, first of all, transaction has taken place on 31st March 2014. Okay, and 5 equal installments. So here transaction took place. After that we have to write 5 years for installment. Okay, so transaction date is 31st March 2014. Then 31st March 2015 is the first installment. 31st March 16 is the second installment. 31st March 17 is the third installment. 31st March 18 is the fourth installment and 31st March 19 is the fifth installment. Okay, so first of all at the time of transaction we had paid, see, 20 lakhs down payment was made at that time. Okay, transaction के टाइम पे यानी कि 31st March 2014 को कुछ भी पे नहीं किया, सिर्फ ये 20 lakhs पे किया, उसी को तो डाउन पेमेंट बोलते हैं. ओके, सो टोटल पेमेंट वॉज मेड 20 lakhs. ओके, 20 lakhs. अगर हम लोग ने इधर लैक्स नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि सारे अमाउंट्स लैक्स में है. चाहिए तो हम लोग ऊपर लिखते हैं लैक्स. ईच एंड एवरी अमाउंट इज इन लैक्स. ओके, सो 20 का पेमेंट हम लोग ने ट्रांजैक्शन के टाइम पे किया. प्रिंसिपल अमाउंट अभी, इंस्टॉलमेंट तो बाद में चालू हो गया, लेकिन ये जो पे किया वो तो फुल हायर परचेस जो भी 100 lakhs का हायर परचेस का प्राइस है उसी के अगेंस्ट हम लोग ने पे किया. सो प्रिंसिपल इज 20 ओनली. टोटल पेमेंट वॉज 20 lakhs एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल पेमेंट. ओके, इंटरेस्ट वॉज नॉट देयर बिकॉज इंस्टॉलमेंट विल स्टार्ट आफ्टर 1 year. ओके, सो इंटरेस्ट वॉज नॉट देयर. सी, इधर हम लोग ने जो ट्रांजैक्शन के टाइम पे पेमेंट किया वो 20 lakhs का किया, सो उसको ही हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे. अभी हम लोग को हायर परचेस प्राइस नहीं देखना है, हम लोग को जो भी कैश प्राइस है वो देखना है. सी, क्वेश्चन में कैश प्राइस हम लोग को बोला है 80. ओके, कैश प्राइस वॉज 80. सो 80 माइनस दिस 20, सो बैलेंस विल बी 60. ओके, ये जो 60 है उसका हम लोग को पेमेंट करना है अभी आउटस्टैंडिंग एज ए आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल. ओके, कैश प्राइस से कैश प्राइस के अकॉर्डिंगली हम लोग को ये सब कैलकुलेशन करना है. ओके, तो फाइनली हम लोग को प्रिंसिपल परफेक्ट 80 मिल जाएगा और जो इंटरेस्ट है वो 20 मिल जाएगा. अगर दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग का हायर परचेस प्राइस दैट इज़ 100 lakhs कंप्लीट हो जाएगा. ओके, पूरा टेबल बनने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो इधर बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 60. ओके, सो नाउ नेक्स्ट
इन द नेक्स्ट ईयर वी हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट। ये तो हम लोग का डाउन पेमेंट हो गया, अभी इंस्टॉलमेंट पे करना है। हम लोग का डिसाइड हुआ है कि इंस्टॉलमेंट हम लोग 16 लाख का करेंगे। ओके, हर एक इंस्टॉलमेंट हम लोग का 16 लाख का ही होगा, तो हम लोग ने इधर सिंपली लिख के रखा है। ओके, सो 16 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि अगर इसका टोटल लेंगे हम लोग तो परफेक्ट 100 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल पेमेंट दैट इज़ हायर परचेज का जो भी टोटल पेमेंट है हम लोग का ट्रांजेक्शन का, वो 100 लैक्स का होगा। अब टोटल ले लो, इसका 80 आता है प्लस 20 इट इज़ 100 लैक्स। ओके, so now installment, that is first installment is of 16 lakh. Now we have to bifurcate this in principal amount and interest। हम लोग को principal amount अलग करना है और interest अलग करना है। so अभी हम लोग interest first of all find out करेंगे, because हम लोग को interest का rate दिया हुआ है क्वेश्चन में। लास्ट में बोला है IRR, presume IRR to be 10.42। see here 10.42 is the interest rate। सो 60 ये जो हम लोग का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है उसके ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी 60 मल्टीप्लाइड बाय 10.42%, दैट इज 6.252, 6.25। ओके, राउंड अप करेंगे 5 तक, सो 6.25। सी टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज 16 माइनस दिस इंटरेस्ट। ओके, so 9.75 is the principal amount, 9.75 is the principal amount। टोटल हम लोग का 16 था इंस्टॉलमेंट, उसमें से प्रिंसिपल इतना जाएगा और इंटरेस्ट इतना जाएगा। अगर टोटल करके देखोगे तो बराबर 16 ही आएगा। ओके, नाउ प्रिंसिपल वाज 60। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल माइनस वी हैव टू डिडक्ट दिस प्रिंसिपल, सो विल गेट द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। ओके, 50.25, 50.25 ये हम लोग का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, उसमें से हम लोग ने इतना प्रिंसिपल पे किया, तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना बचा वो हम लोग को समझा। 60 माइनस दिस 9.75, सो 50.25 इज द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इन केस ऑफ दिस आफ्टर दिस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल लाइक दिस। सो हियर 50.25, इसके ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 10.42%, दैट इज 5 राउंड अप करेंगे 24 तक, बिकॉज इट इज़ 6 ना, सो राउंड अप करेंगे। देन नेक्स्ट 16 इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट माइनस दिस इंटरेस्ट, सो विल गेट 10.76, 10.76 एज अ प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, नाउ दिस वॉज द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, वी हैव टू माइनस दिस प्रिंसिपल फ्रॉम दिस। सी 50.25 हम लोग का आउटस्टैंडिंग था, उसमें से ये साल में हम लोग ने 10.76 पे किया, तो कितना बचा 39.49। हायर परचेस का क्वेश्चन भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो वही प्रिंसिपल यूज़ करके इधर करना है। सी नेक्स्ट अभी इधर हम लोग को इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा 39.49 के ऊपर 10.42%। ओके, 4.11 इज द इंटरेस्ट। 16 इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट माइनस दिस इंटरेस्ट, सो 11.89 इज द प्रिंसिपल। ओके, 39.49 minus 11.89, so 27.60 is the principal amount. Now we have to calculate the interest on this, multiplied by 10.42%, so 2.88 is the interest. Now 16 is the installment amount minus this 2.88, so 13.12, 13.12 is the this principal amount. So 27.60 is the outstanding principal. From that we have paid 13.12 in this year, so 14.48 is the outstanding principal. Okay, now we have to calculate the interest on this, that is multiplied by 10.42%. okay, that is 1.51. okay, 16 minus 1.51, it is 14.4। अभी इधर कैलसी पे तो 49 आया है, लेकिन हम लोग का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है, मतलब ये जो प्रिंसिपल है वो पूरा का पूरा हम लोग ये इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो पॉइंट का फ़र्क चल जाता है, हम लोग इधर 8 लिखेंगे। ओके, वी हैव टू राइट 8 हियर, इवन दो हियर कमिंग 49, देन ऑल्सो विल टेक 48 बिकॉज पॉइंट आंसर इज देयर, नो, सो दैट्स वाई डिफरेंस इज कमिंग। So now we'll take the total of principal payment.
20 plus 9.75 plus 10.76 plus 11.89 plus 13.12 plus 14.48. It is exactly 80 lakhs. So principal amount was 80 lakhs जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था. हायर परचेस का प्राइस था टोटल 100, उसमें से इंटरेस्ट 20 था ना, तो प्रिंसिपल कितना आया 80. अभी इंटरेस्ट का भी टोटल चेक करेंगे. 6.25 प्लस 5.24 प्लस 4.11 प्लस 2.88 प्लस 1.51. ओके 51. सो इधर 52 करेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा. सो हम लोग का आएगा 20 lakhs. ओके. इधर प्रिंसिपल कुछ नहीं बचेगा क्योंकि हम लोग ने पूरा इधर पेमेंट करके दिया है. 5 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना था, सो प्रिंसिपल कुछ नहीं बचेगा. सो इधर हम लोग का ये टेबल रेडी है. अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था एक बार चेक करेंगे. सी व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी कि जो फर्स्ट जो हम लोग का ट्रांजैक्शन हो गया उसके बाद हम लोग का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना था. सी 60,000 वॉज द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बिकॉज कैश प्राइस वॉज 80 lakhs. उसमें से 20 lakhs का डाउन पेमेंट हो गया, यानी कि प्रिंसिपल कितना बचा 60 lakh का. ओके. सो फर्स्ट आंसर इज 60 lakh विच वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2015. आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग को पूछा है. सी द कंपनी शुड रिकॉग्नाइज द फाइनेंस चार्ज फॉर द 2015-16 एज इनकम. ओके. सो इसका आंसर है येस, द कंपनी शुड रिकॉग्नाइज द फाइनेंस चार्ज फॉर द ईयर 2015 and 16 एज अ इनकम बिकॉज दे आर डूइंग हायर परचेस ट्रांजेक्शन. सो whatever income is coming, so they'll show as a income. Okay. Next, what should be the net book value of asset on 31st March 2016 for Samdev Limited is concerned as per the NBFC prudential norms provisions. Okay. And what should be the amount of provision. इसका मतलब और कुछ नहीं है. हम लोग ने जो स्टार्टिंग में चार्ट देखा, मतलब आउटस्टैंडिंग अगर 12 मंथ्स तक होगा तो प्रोविज़न नहीं रहेगा. उसके बाद अगर मंथ वाइज हम लोग ने देखा कि कितना कितना प्रोविज़न रहेगा, तो इधर हम लोग को बोला है कि सामदेव लिमिटेड का भी जो इंस्टॉलमेंट है वो रिकवरी नहीं हुआ है सेकेंड वाला. सो उसके लिए हम लोग को कितना प्रोविज़न करना पड़ेगा, यही सब इसका मीनिंग है. ये जो नेट बुक वैल्यू है वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो समझेगा. ओके. सो वी हैव टू शो दैट अप टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव टू make a provision for this outstanding installment. So it means these two questions are saying the same thing, that should we do the provision and what is the amount of provision. Okay. So इधर तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. अभी नेक्स्ट हम लोग को वो पार्ट करना है, मतलब प्रोविजन करना है कि नहीं और करना है तो कितना करना है. सो इधर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट अमाउंट. सो विल गेट द टोटल लायबिलिटी ऑन 31st March 2015. सी इधर 31st March 2015 हम लोग का आउटस्टैंडिंग कितना है प्रिंसिपल और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है वो हम लोग को देखना है. सी 31st March 2015 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पे किया उसके बाद का हम लोग को करना है, क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम लोग का मिला नहीं है. वी वर नॉट एबल टू कलेक्ट दिस सेकेंड इंस्टॉलमेंट. सो दिस इज़ द ड्यू. दिस इंस्टॉलमेंट इज ड्यू. ओके. ये इसका प्रिंसिपल है और इसका ये इंटरेस्ट है. ओके. सो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर ही हम लोग को ये इंटरेस्ट मिला है. ओके. सो दिस इज द आउटस्टैंडिंग. फाइनल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 50.25. मतलब 60 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरा चला गया तो बैलेंस बच गया. ये बैलेंस के ऊपर हम लोग ने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया. ओके. सो हम लोग का एग्जैक्ट आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है 50.25. ओके. आफ्टर पेइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल वॉज 50.25. वी हैव टू ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. ओके. बैलेंस वॉज ड्यू ऑन 31st March 2016. सो 31st March 2016 के लिए इंटरेस्ट कितना है वो देखना है 5.25. ओके. सो 50.25 प्लस 5.25 टोटल इज 55.49. 55.49 is the total liability as on 31st March 2015. Okay.
जो हम लोग का टेक्स्ट बुक में आंसर है उसमें थोड़ा कैलकुलेशन उन लोग ने टेबल वाइज करके दिखाया है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हम लोग इजीली समझ सकते हैं। ओके हाँ, सो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल वॉज दिस मच एंड इंटरेस्ट वॉज दिस मच। अभी ये प्रिंसिपल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ने इधर ही टोटल प्रिंसिपल लिया है। ओके सो प्रिंसिपल वॉज दिस मच एंड इंटरेस्ट वॉज दिस मच व्हेन दिस सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू। जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू था तो प्रिंसिपल इतना आउटस्टैंडिंग था और इंटरेस्ट इतना आउटस्टैंडिंग था, तो टोटल लाइबिलिटी हम लोग का एज ऑन 31 मार्च 2016, इट शुड बी 16, हाँ 31 मार्च 2016 इतना हम लोग का लाइबिलिटी था। तो अभी हम लोग को चाहिए नेटबुक वैल्यू। ओके सो नेटबुक वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग ने ये लाइबिलिटी पे नहीं कर सके, मतलब जो भी जिसने भी ये मशीन्स परचेस किया है उसने अगर ये लाइबिलिटी नहीं पे कर पाया, तो हम लोग ये जो असेट उसको दिया हुआ है हायर परचेस बेसिस पे, वो सेल करके हम लोग रिकवरी कर सकते हैं। ओके इफ़ the purchaser will not be able to pay the liability, so in that case whatever asset we have given to him on the hire purchase basis, so we will take it back and we will sell it in the market. So how much amount we will get, so that is called as net book value. Okay so fair value is, see fair value is 80 lakhs। okay अभी ये कब हुआ था, 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 को फेयर वैल्यू यानी कि हम लोग का जो असेट का वैल्यू है, कैश प्राइस जो हम लोग को दिया है, दैट इज 80 lakhs। ओके सो वी हैव टू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द फेयर वैल्यू सो दैट विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑन दिस डेट, दैट इज 31 मार्च 2016। ओके सो ये जो स्टार्टिंग का वैल्यू है दैट इज 31 मार्च 2014 को लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। ओके डेप्रिसिएशन का रेट जो है, अभी ये मशीन हम लोग को बोला है, सो मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट होता है 20% SLM। ओके हम लोग जो ब्लॉक वाइज इसका असेट के डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम लोग को पता है कि असेट के ऊपर 20% SLM से रेट लगता है डेप्रिसिएशन का। सो 80 lakh was the fair value multiplied by 20%, so 16 lakh is the depreciation amount, 16 lakhs। okay we have to deduct this, so we'll get the balance amount as a 64 lakhs। okay this is the depreciation। so ये depreciation हम लोग का फर्स्ट ईयर में चार्ज हो गया, तो अभी ये बैलेंस आ गया 31 मार्च 2015 को। ओके अभी हम लोग का जो इंस्टॉलमेंट का प्रॉब्लम हुआ है वो 16 में हुआ है, 15 में नहीं, तो हम लोग 16 तक जाएंगे। सी नेक्स्ट अगेन डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर, दैट इज SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। सो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो फिक्स ही रहेगा। सो 16 lakh विल बी द डेप्रिसिएशन इन द सेकेंड ईयर ऑल्सो। so 64 lakh minus 16 lakh, it is 48 lakh। 48 lakhs is the final value as on 31st March 2016। okay 31st March 2016 पे 48 लाख इतना अमाउंट हमारे पास बचा है। ओके सो नाउ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, सी अगर इतना लायबिलिटी जिसने भी मशीन परचेस किया है वो पे नहीं कर पाया, तो एटलीस्ट हम लोग इतना तो रिकवर कर सकते हैं। ओके जो भी असेट है उसको सेल करके। सो नाउ वी विल फाइंड आउट द प्रोविजन एज पर NBFC प्रूडेंशियल नॉर्म्स। फॉर दैट व्हाट विल वी डू, टोटल लायबिलिटी माइनस नेट बुक वैल्यू, दिस इज द नेट बुक वैल्यू। मतलब आज के डेट पे मतलब जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है दैट इज 31 मार्च 2016, वो डेट पे वो असेट का कितना वैल्यू है उसको हम लोग नेट बुक वैल्यू बोलते हैं। सो फॉर्मूला विल बी टोटल लायबिलिटी, दैट इज दिस टोटल लायबिलिटी माइनस नेट बुक वैल्यू विच इज बोथ जो भी वैल्यूज़ है वो 31 मार्च 2016 में है। सो जो टोटल लायबिलिटी है, एक लाइन छोड़ते हैं, टोटल लायबिलिटी है 55.49 माइनस नेट बुक वैल्यू इज़ 48। सो फाइनली अगर प्रोविज़न बनाना रहेगा तो कितना रहेगा, 55.49 माइनस 48। सो प्रोविज़न विल बी ऑफ ₹7.49 lakhs। इतना अगर प्रोविज़न बनाना है तो इतना हम लोग का प्रोविज़न बनेगा। ओके इतना हम लोग का प्रोविज़न बनेगा। लेकिन अभी ये जो इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हुआ है, मतलब 2015 का तो हम लोग ने पे किया, मतलब वो रिकवर हो गया था,
अभी ये जो 16 का इंस्टॉलमेंट है उसका प्रॉब्लम है, अभी नेक्स्ट जो ईयर है वो तो आने वाले बाकी है ना। सो इधर कितना पीरियड हो गया, इधर हम लोग का सिर्फ 12 मंथ्स इतना ही पीरियड हो गया। ओके, हियर ओनली 12 मंथ्स पीरियड इज ओवर। सो इन दैट केस देर इज़ नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ प्रोविजन, बिकॉज जो स्टार्टिंग में हम लोग ने चार्ट देखा उसमें क्या बोला था, अप टू 12 मंथ्स देर शुड बी नो प्रोविजन, अप टू 12 मंथ्स देर शुड बी नो प्रोविजन। सो हम लोग ये अमाउंट का प्रोविजन नहीं बनाएंगे ये साल में। अगर अगेन नेक्स्ट ईयर उसने अगेन ओवरड्यू किया तो वो केस में हम लोग को 10% का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। बुक में भी ये नेट बुक वैल्यू इतना ही आया है, और ये जो अपना प्रोविज़न एज़ पर एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स है वो इतना ही आया है, लेकिन उनका कैलकुलेशन मेथड थोड़ा अलग है। मुझे ये बेटर लग रहा है, सो इसलिए मैंने आपको भी यही बताया है। ओके, सो इधर सी एक बार हम लोग चेक करते हैं वो जो टेबल हम लोग ने देखा था। सी अप टू 12 मंथ्स देर शुड बी नो प्रोविजन। सो हम लोग का आंसर तो 12 मंथ्स तक की है, मतलब वो जो इंस्टॉलमेंट है वो 12 मंथ्स तक की ड्यू है, तो हम लोग प्रोविजन नहीं कर सकते। ओके, अगर वो नेक्स्ट ईयर भी उसने ओवर ड्यू किया तो वो केस में 10%, उसके बाद 40, 70, 100 ऐसे परसेंट में प्रोविजन किया जाता है। ओके, so finally here we have completed illustration number 4. Along with that we have completed our topic, that is NBFC illustrations. Okay, so if you found this video helpful then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist so that you will get more videos on various topics. Okay, thanks for watching friends.